خان آج ترک صدر سے 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنما مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترکش میڈیا کو انٹرویو بھی شیڈول کر دیا گیا ہے۔ انقرہ میں وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے ممتاز تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب بھی کیا۔ سی پیک منصوبے سے پاکستان میں زبردست تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت کا حجم بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بولے، پاکستان میں آئندہ 5 سال کے دوران 50 لاکھ گھر تعمیر ہوں گے۔ ملک میں گورننس کی بہتری پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ چین کی مدد سے خصوصی اقتصادی زونز بھی قائم کر رہے ہیں۔ Pakistan and Turkey enhanced our trade to a higher level. We have our problems. We have, for some reason, not achieved the potential of trade between the two countries that we should have. A huge development taking place in Pakistan. If we start working from now onwards, the trade between the two countries will increase. Pakistan is on the verge. We are fixing our governance system. What we are trying to do is make it easier for businesses. So for businesses from Turkey, we will make it much easier. Pakistan is embarking on the next 5 years of building 5 million houses, affordable houses. It's a huge project. So your construction companies are welcome. وزیر اعظم عمران خان کی ترکی میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر حاضری ہوئی۔ کہتے ہیں مولانا روم کی صوفیانہ تصنیفات روحانی موضوعات پر شاہکار اور لازوال ہیں۔ مولانا خادم علامہ اقبال کے روحانی پیشوا تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، ترکی کے ساتھ ہمارے تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ اسلام آباد سے شہباز احمد رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ گورنر کونیا، ڈپٹی میئر اور ترکی میں پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی پیشوا تھے۔ Anyone who follows Sufism knows about Maulana Rumi and Shams Tabriz, and then we know the ideological father of Pakistan. The ideological father was the great Allama Iqbal, and we know how much he was a follower of Maulana Rumi. کونیا کے بعد وزیر اعظم عمران خان انقرہ پہنچ گئے، جہاں ترکش وزیر تجارت نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے ترکش وزیر تجارت سے ملاقات میں پاک ترک تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج وزیر اعظم کی ترک صدر طیب اردگان سے 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا ترک میڈیا کو انٹرویو بھی شیڈیولڈ ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شہباز احمد، نیو نیوز، اسلام آباد۔ حکومت معیشت سے متعلق عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ نون لیگ کی رہنما شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں وفاق کے وزراء کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ملک کی بدقسمتی ہے، جھوٹ بولنے والے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تحریک انصاف کی ناکام حکومت نے لوگوں کے کاروبار بھی تباہ کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی بولے، 32 سالہ سیاسی کریئر میں اس سے بدتر حالات کبھی نہیں دیکھے۔ رہنما پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ بولی، حکومت کا انتقام اور جھوٹے احتساب کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں۔ حکومت معیشت پر جھوٹ بول رہی ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی اندھا دھند تنقید۔ حکومت ملک کے معاشی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، حل کرنے میں ناکام ہے، اور حکومت جو معیشت کے اثرات ہیں اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ بھی برس پڑی، بولی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ حکومت سندھ حکومت کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ یہ ساری موقف ویلیڈیٹ ہوتا ہے کیونکہ حکومت نے کوئی بھی ایکشن سپریم کورٹ کے ہدایت پر نہیں لیا۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں حکومت کے منی بجٹ سے ملک میں ایک بار پھر مہنگائی کا طوفان آئے گا۔
और अब आपको बताएं कि पंजाब के बाद नैब ने सिंध का रुख कर लिया। नैब कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को आज तलब कर लिया है। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ मलीर नदी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। उधर तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा कि नैब की जानिब से तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला। कायम अली शाह भी तलबी से ला इल्म निकले। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के बाद सिंध में नैब हरकत में आ गया। मलीर नदी अराजी केस में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी पेश होने की हिदायत। नैब मलीर नदी अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट की तहकीकात कर रहा है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है मुराद अली शाह को नैब में तलबी का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। कायम अली शाह ने भी नैब की तलबी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। तर्जुमान का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्की इदारों का एहतराम किया। इस तरह की किरदार कशी नई बात नहीं। अगर कोई नोटिस मिला तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सियासी मुखालिफिन सिंध हुकूमत गिराना भी चाहें तो नहीं गिरा सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ललकार, कहते हैं 3 सूबों में काम ठप हो चुका। विफाक की मखलूत हुकूमत चाहें तो गिरा सकते हैं। जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है नहीं लगता वक्त पूरा कर पाएगी। मुराद अली शाह कहते हैं तमाम इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। उनके इस्तीफे का फैसला सिर्फ पार्टी क़यादत कर सकती है। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई चांस नहीं। उनको खटक रही है। एक सूबा उनके पास नहीं है, 3 सूबों ने में, और मैं माजरत क्या करूं, वाकई हकीकत है उन्होंने जो काम ठप कर दिया है सिर्फ एक रेटरिक के साथ कि ये हम चोरी नहीं होने देंगे, हम लूटा हुआ माल वापस लाएंगे। भाई आप भले लाएं, कौन आपको रोकता है? ये तो काम है आपका ना इसमें, लेकिन जो बाकी काम है आपका। अभी आज नंबर्स आए हैं, मुझे किसी ने बताया, मैं भी कंफर्म नहीं हो सकता ये गलत हो, लेकिन FPR की ग्रोथ 2% रही है इस वक्त तक 6 महीने के अंदर। हमारी जो सूबाई SRB है उसकी 18% ग्रोथ है। पंजाब की ग्रोथ नेगेटिव है रिसोर्सेज की, वो जो उनकी रिकवरी है। नैब कराची ने साल 2018 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2018 में नैब कराची ने 160 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। नैब कराची को साल 2018 में 10,311 शिकायत मौसूल हुई। 564 शिकायत में से 315 की तस्दीक का अमल मुकम्मल हुआ। 397 इंक्वायरीज में से 104 इंक्वायरीज मुकम्मल की गई। तफसीलात से आगाह करेंगे खुर्शीद रहमानी। नैब कराची ने साल 2018 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। एहतसाब अदालत में 46 रेफरेंस दायर किए। तहकीकात में 33 केसेस में जुर्म साबित हुए। एहतसाब अदालत ने प्ली बार्गेन और जेल की सजा सुनाई। 518 बिलियन रुपए रिकवर करवाए गए। डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों में 50 बिलियन रुपए मालियत तक की 10,000 एकड़ सरकारी जमीन वाह गुजार कराई गई। साल 2018 में नैब कराची ने 160 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि 10,311 शिकायत मौसूल हुई। 10,000 शिकायत पर तहकीकात और कार्रवाइयाँ की गयी। 564 शिकायत में से 315 की तस्दीक का अमल मुकम्मल किया गया। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। शरीफ बरादरान के खिलाफ सबसे बड़े केस सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बन गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक मामलात की तहकीकात नए सिरे से होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने IG मोटरवेज AD ख्वाजा को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया। ISI, MI और दीगर इदारों के नुमाइंदे कमेटी में शामिल होंगे। मजीद बताएंगे सलमान कुरैशी। शरीफ फैमिली की परेशानी में इजाफा। सानिया मॉडल टाउन की 5 रुकनी नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुज़्ज़मान, MI के लेफ्टिनेंट कर्नल अरफान मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद कमाल और DIG हेडक्वार्टर गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा शामिल हैं। इससे पहले साबिक CPO कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा की सरबराही में बनने वाली JIT ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर कानून राणा सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया था, लेकिन अवामी तहरीक ने साबिक JIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। सलमान कुरैशी, नियो न्यूज़, लाहौर।
साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा और बेटी मरियम नवाज समेत दीगर अहले खाना ने मुलाकात की। मरियम नवाज कहते हैं वालिद की सेहत ठीक और हौसले बुलंद हैं। कायद से मिलने लीगी रहनुमा भी जेल पहुंचे। मोहम्मद जुबैर और परवेज मलिक ने मुतालबा किया, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन काफ़ी नहीं, मजीद दिन भी दिए जाने चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त बढ़ा दी है और दोबारा से दायर कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम लकी। जुमेरात का दिन कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात का रोज। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर अंदर शहबाज समेत अहले खाना की नवाज शरीफ से मुलाकात। वालदा ने भी बेटे को गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। बेटी मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में वालिद की तबीयत से आगाह किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म से मिलने आया सादिक, खुर्रम दस्तगीर, जाहिद आमिद, सायरा अफजल तारड़ और मोहम्मद जुबैर समेत दीगर मतवाले भी कोट लखपत जेल पहुंचे। नवाज शरीफ ने मुलाकातियों से गिला किया कि मुझे जेल बैरक से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जेल में सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क को तरक्की दी, मोटरवे बनाई, मुझे ये सिला मिलना था, अब मईशत का बुरा हाल हो गया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुकम्मल करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक मरकज़ी अपील का फैसला नहीं होता सजा मुअत्तल की जाए। नवाज शरीफ जेल से रिहा होकर बाहर चले जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रहमान मलिक का न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशविन जमाल के साथ में अहम इंकशाफ, कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक नहीं, वो इलाज के सिलसिले में बाहर जाएंगे। शरीफ बरादरान किस्मत के धनी हैं, उनकी दुआएं हमेशा रंग लाती हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि वो अपनी मालूमात की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ किस्मत के धनी हैं, वो जो दुआ करते हैं उनकी पूरी हो जाते हैं। मेरी प्रेडिक्शन ले ले, जो मेरी इस केस को भी स्टडी किया, बहुत चीजें देखी हैं, मेरा ख्याल है कि ये कन्विक्शन सस्पेंड हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो मैंने अल्लाह को सेहत दे, मियां साहब को बड़े मुश्किल वक्त में गुजरे हैं, बेगम साहिबा की वजह से डेथ हुई, वो बीमार लगते हैं, मेरा ख्याल है वो इलाज के लिए बाहर। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा वज़ीर आज़म की साबिका मुशीर पीपल्स पार्टी आसमा आलमगीर एहतसाब अदालत में पेश हुई। आसमा आलमगीर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आमदनी से ज़ायद असासे बनाए। नैब की जानिब से साबिक रुकने कौमी असम्बली आसमा आलमगीर और उनके शोहर अरबाब आलमगीर के खिलाफ 33 करोड़ रुपए रेफरेंस दायर किया गया है। रिपोर्ट करेंगे नायाब रिजवान। आमदन से जायद असासे पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर एहतसाब अदालत में पेश हो गए। दोनों ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस की कॉपी हासिल की। एक गाड़ी इन्होंने मेरी ऊपर डाली है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास 15 गाड़ियां हैं और मेरे पास उस वक्त भी गाड़ी थी जब पाकिस्तान नहीं बना था। आसमा आलमगीर ने इल्जाम लगाया इमरान खान अपने चोर वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अपनी बहन अलीमा खान को 2 करोड़ रुपए के एवज़ छुड़वाया। इमरान खान के वजीर है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, जाके उनको टेकअप करो। उनमें अगर इतना दम है इमरान खान तुम्हारे वजीरों में, तो जाके हाई कोर्ट में हमारे जैसे रेड करे और नैब को कहे कि उनके खिलाफ रेफरेंस डाले। अपनी बहन को तो तुमने किस तरीके से एनआरओ दे के छुड़वा दिया और हमें 15 करोड़ रुपए पर ECL में डाला है। एहतसाब अदालत ने आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर को 10 जनवरी को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन खुर्रम जलील के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। मोहम्मद डैम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट एस्कॉन को देने का मामला, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुशीर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रज़ाक दाऊद की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या ये अकरबा परवरी नहीं। साद रफ़ीक बोले मुशीर तजारत का इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं, नवाज शरीफ को ऐसे इल्ज़ामात पर जेल डाला गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तहकीकात और रज़ाक दाऊद की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। PP रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने हुकूमती वजाहत मानने से इनकार करते हुए कई सवालात उठाए। मुर्तज़ा वहाब भी हुकूमत पर चढ़ दौड़े, बोले दोस्तों को नवाजने के लिए यू टर्न लिए जा रहे हैं। खान साहब ने कहा था। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक कहते हैं डेस्कॉन पीछे हटे या रज़ाक दाऊद वजारत छोड़ दें, नवाज शरीफ को ऐसे इल्ज़ामात पर जेल डाला गया। मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया, उनकी बेटी को सजा सुनाई गई है और जब ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया कि मेरे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं और पाकिस्तान से बाहर अपना बिजनेस करते हैं और नवाज शरीफ साहब के नाम पे कोई बिजनेस बरसों से नहीं है,
ان کی بات تو نہیں سنی گی, انہیں بار بار سزا دی جاتی ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا ان پر اور ان کے بھائی پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے. اپنا گھر بھرنے والوں کو عوام کے لیے ڈیم کا منصوبہ ہضم نہیں ہو رہا. حکومتی رہنماؤں کا اپوزیشن کی پریس کانفرنسز پر رد عمل. محمد ڈیم کا کانٹریکٹ منسوخ کرنے سے صاف انکار. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ بددیانتی کی علامتیں مشورے دینے کی بجائے اپنے اعمال پر توبہ کریں. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واڈا کے مطابق یہ عناصر ڈیمز کو متنازع بنا کر ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی بولے حکومت کی شاندار کارکردگی کے باعث انہیں کوئی قابل اعتراض چیز دستیاب نہیں ہو رہی, اس لیے پریشان ہیں. وفاقی وزراء کا اپوزیشن کی پریس کانفرنسز پر رد عمل. فواد چودھری نے معاشی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کو آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کا مشورہ دے ڈالا. کہتے ہیں انہی کے بوئے ہوئے کا پوری قوم خمیازہ بھگت رہی ہے. معیشت کی بدحالی انہیں اس وقت یاد نہ آئی جب یہ اقتدار میں تھے. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واڈا نے بھی محمد ڈیم کا کانٹریکٹ منسوخ کرنے سے صاف انکار کر دیا. اپوزیشن پر ڈیمز کے خلاف سازش کا الزام. کہا ہر سازش ناکام بنائیں گے, کسی کو تحقیقات کروانا ہے تو 100 بسم اللہ. اب یہ لوگ ٹاک شوز کی گفتگو کے جملوں کی تلاش میں رہنے لگ گئے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی نے شاہد خاقان عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ اس پارٹی کے وزیر اعظم رہے ہیں جس نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا. میرا میسج خاقان عباسی صاحب کو یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. آپ اس پارٹی کے حکمران تھے جس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. افتخار درانی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے سابق حکومت کی بری پالیسیز کو درست سمت دی ہے. انشاءاللہ 2019 میں پاکستان ایک خوشحال اور بہترین ملک ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی نے کہا کہ احتساب کو انتقام بنا دیا گیا ہے. جو کپتان کا حامی وہ صاف ستھرا, جو ضمیر کی آواز پر لبیک کہے وہ چور اور غدار. نہ کوئی سیاسی پالیسی ہے نہ کوئی معاشی ایجنڈا. تحریک انصاف نے سیاست میں شائستگی کا خاتمہ کر دیا. نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی خان کہتے ہیں اقتدار کے ساتھ حزب اختلاف نہایت ضروری ہے, لیکن اختلاف کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ کپتان صاحب کے سامنے سر و سجود ہو جاتا ہے وہ تو فرشتہ ہے, اور جو اپنا ضمیر, اپنا ایمان, اپنی سیاست بیچنے کو تیار نہیں ہوتا وہ چور اور ڈاکو ہے. انہوں نے کہا سندھ حکومت کے تمام مالی و انتظامی اختیارات ایک شخص کو دینے سے سندھی قیادت کی تضحیک ہو رہی ہے. کپتان صاحب اتنا یاد رکھیں کہ قدرت کا قانون ہے. آج تو اوروں کی تحقیق کرے گا کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کل ایک دن تم نے بھی اسی پہ یہ تیرے گلے میں بھی پڑے گا. اسفندیار ولی خان نے زور دیا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کرے. ملک میں قیام امن کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر ہر صورت میں عمل درآمد ہونا چاہیے. کیمرامین دوست محمد کے ساتھ لحاظ علی, نیوز پشاور. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے قبائلی ضلع خیبر کا دورہ کیا. دورے کے موقع پر جمرود کے لیوس سینٹر میں قائم DRC سینٹر کے مختلف حصوں کا معائنہ بھی کیا. خیبر سے عبدالقیوم آفریدی کی رپورٹ. فاتح انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا قبائلی علاقوں کا دورہ. ضلع خیبر دورے کے موقع پر والہانہ استقبال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے DRC کا معائنہ بھی کیا. لوگوں نے وزیر اعلیٰ کو مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا. آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے, آپ لوگوں کے لیے اسکول بنوائیں گے, آپ لوگوں کے لیے اسپتال بنوائیں گے. یہ جو یہاں پر مار داڑ تھی اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. لیگل پیسہ ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں پر لگے گا. یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. میں پھر آؤں گا, آپ لوگوں کے درمیان بیٹھوں گا, بڑا جرگہ کریں گے اوپن وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قبائلی عوام کی امن کے حوالے سے بے پناہ قربانیاں ہیں. بہت جلد تمام قبائلی علاقوں میں صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کو بہتر بنائیں گے, جس پر کام جاری ہے. کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی, نیوز ضلع خیبر. بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ. جائیداد کی منتقلی میں پٹوار خانوں کا کردار ختم کر دیا گیا. جائیداد کا انتقال صرف لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوگا. چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس میں کہا پٹوار خانوں میں پٹواریوں اور ان کے عملے نے لوٹ مچا رکھی ہے. پٹوار خانوں میں اب صرف لینڈ ریکارڈ رکھا جائے گا. عدالت کے فیصلے پر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی.
जमीन जायदाद की मुंतकली हुई आसान, लोगों की पटवारियों से छुट गई जान। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, जमीन मुंतकली में पटवारी का किरदार खत्म। पटवार खानों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड मौजूद है तो पटवार खानों की क्या जरूरत। शहरी और बंदोबस्ती इलाकों के पटवार खानों और पटवारियों का कोई किरदार नहीं होगा। जायदाद का इंतकाल सिर्फ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत किया जाएगा। पटवार खानों में सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बिल्कुल हुकूमत का अच्छा इकदाम है। पहले पटवारी जो उनसे हैं वो मतलब कि आम आवाम को बहुत मतलब कि तंग करते थे। एक जो हमारा लीगल काम है उसके लिए जानबूझ के बीच में से कोई ना कोई इशू निकाल देना, कोई वो इसमें ना कोई निकाल देना, कंप्लेन निकाल देनी। जब से पाकिस्तान बनता आया है तो हम तो यही देखते आए हैं, ये दिहाड़ियाँ लगाते रहे हैं और ना सुनवाई होती थी, कुछ भी नहीं होता था। ये अवाम को ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इसके अलावा अवाम सुकून से जाएगी, अपना काम करेगी, वापस आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पटवार खानों से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। और लंबे बालों के लिए। और अब आपको बताएं कि कराची साइड, सुपर हाईवे और दीगर इलाकों में पुलिस की कार्रवाई हुई है। सियासी जमात के टारगेट किलर समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, असलहा और बारूद भी बरामद। सोल्जर बाजार में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुकाबलाती मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। जमशेद क्वार्टर से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 बच्चे पकड़े गए। बच्चों ने 3 रुकनी गैंग बना रखा था। मजीद तफसीलात मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट में। कराची औरंगी टाउन में पाकिस्तान बाजार पुलिस ने कार्रवाई करके टारगेट किलर काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट शौकत कथियान के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने साल 2012 में मुखालिफ जमात के कारकुन का कत्ल भी किया। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम और पिस्तौल बरामद कर ली। दूसरी जानिब सोल्जर बाजार पुलिस ने मंशियात फरोशों की इत्तला पर छापा मारा तो मुलजिमान से मुकाबला हो गया। फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। एसएसपी ईस्ट असफर मेहसर के मुताबिक मुलजिमान ने गुज़िश्ता दिनों पुलिस एहलकार सुहेल को कत्ल किया था। मुलजिमान का ताल्लुक लियारी गैंगवार जमील झांगा ग्रुप से है। जमशेद क्वार्टर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोरी करने वाले कम उम्र बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक मुलजिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजिमान खवातीन से पर्स और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। मुलजिमान ने सबसे ज्यादा चलती बस में कंडक्टर को लूटने की वारदातें की। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने शादी की तकरीब में फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। मोहम्मद हम्माद, न्यूज़ कराची। एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा अली रजा आब्दी कत्ल केस में डॉक्टर फारूक सत्तार को जीआईटी ने तलब कर लिया। फारूक सत्तार ने कहा, अली रजा आब्दी से आखिरी राबिते और सियासी रुझानात से मुतालिक सवालात पूछे गए। फारूक सत्तार ने अपना बयान तहकीकाती कमेटी को रिकॉर्ड करवाया। एसएसपी साउथ कराची पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि अली रजा आब्दी कत्ल की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। मजीद रहनुमाओं को भी मालूमात के लिए बुलाया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे नसीम आदिल। एमक्यूएम के मकतूल रहनुमा अली रजा आब्दी कत्ल केस में डॉक्टर फारूक सत्तार जीआईटी में तलब। फारूक सत्तार से अली रजा आब्दी के आखिरी राब्ते और सियासी रुझानात से मुतालिक सवालात पूछे गए। फारूक सत्तार ने अपना बयान तहकीकाती कमेटी को रिकॉर्ड कराया। अली रजा से आखिरी राब्ता उनके 2 दोस्तों के जरिए हुआ था। पुलिस को बताया कि अली रजा आब्दी महाजिर इत्तेहाद के लिए कोशा थे। एसएसपी साउथ कराची पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि अली रजा आब्दी कत्ल की मुख्तलिफ दावे से तहकीकात कर रहे हैं। मजीद रहनुमाओं को भी मालूमात के लिए बुलाया जाएगा। इसमें हमने बयानात वगैरह लिए हैं और इस केस की तहकीक हो रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स भी हैं। अली रजा आब्दी का बड़ा स्ट्रेचर था पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पे एमक्यूएम के जो धड़े थे उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी और हमें भी गर्दिश कर रही हैं। जितने भी बड़े लीडर्स हैं मुख्तलिफ धड़ों के एमक्यूएम के, उनको बुलाएं और उनसे 1-to-1 क्वेश्चन करें। एसएसपी साउथ ने मजीद कहा कि कत्ल के दिन अली रजा आब्दी से रब्ता करने वाले तमाम अफराद से मालूमात ली जाएंगी। नसीम आदिल, न्यूज़ कराची। बकर में 6 साला बच्चे के कत्ल को 1 हफ्ते से ज़ायद हो गया। पुलिस कातलों का सुराग लगाना तो दूर, मकतूल की लाश के तमाम अज़ा भी तलाश न कर सकी। वर्षा गम से निढाल अहली इलाका कहते हैं बच्चे के स्कूल के रास्ते में काला जादू करने वाले आमलों के डेरे हैं, कब्रिस्तान भी है। पुलिस सही तरह तफ्तीश नहीं कर रही। उधर डीपीओ का कहना है मशकूक अफराद के सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवा दिए, मुलजिमान जल्द पकड़े जाएंगे।
बक्कर में 6 साल हबीब का बेदर्दी से कत्ल, एक हफ्ते बाद भी कातिलों का सुराग न लग सका। अहले इलाका का कहना है पुलिस तमाम पहलुओं से तफ्तीश नहीं कर रही, इसको काला जादू, तावीज गड्ढू के पहलू से भी तफ्तीश करनी चाहिए। उधर DPO बक्कर शाइस्ता नदीम कहती हैं 200 से ज्यादा मशहूर अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन पहले जिस पे बेस कर रही थी, हमने तमाम एरिया जो है उसको सर्च करवाना शुरू किया, दोनों जगहों पे जहाँ से किडनैप हुआ था और जहाँ से खुद उसकी डेड बॉडी। DPO बक्कर ने कहा पुलिस अफसरान को इंतहाई तरजीही बुनियादों पर मुलजमान की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए गए हैं। रावलपिंडी में मौलाना समीउल हक कत्ल का मामला, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 7 अफराद का पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल हो चुका है। तफसीलात हम्माद असलम की रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक मौलाना समीउल हक के ड्राइवर अहमद शाह समेत 7 अफराद का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। टेस्ट में अहमद शाह से सवालात किए गए जिसमें उन्होंने झूठ बोला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से ड्राइवर अहमद शाह से कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल होने का सवाल भी हुआ। 2 अफराद के फिंगरप्रिंट्स और DNA कमरे से मिलने वाले नमूनों से मैच कर गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट में 3 अफराद ने सच बोला और इनके बयानात की रोशनी में तहकीकाती टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी। साहिवाल के इलाका GT रोड पर फतू मोड़ के करीब बस और कार की टक्कर, हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक हादसा पेश आया साहिवाल में GT रोड पर फतू मोड़ के करीब बस और कार की टक्कर, हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तब्दीली सरकार की जानिब से बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स का क़याम। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की हिदायत पर कोयटा समेत सूबे के दीगर इलाकों में और दारुल पनाह के नाम से शेल्टर होम कायम कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान में पहली बार कायम होने वाली दारुल पनाह के क़याम के बारे में रिपोर्ट करेंगे आज़म उल्फत। कोयटा के बाद दालबंदीन और डेरा मुराद जमाली में भी दारुल पनाह कायम कर दिए गए हैं। दारुल पनाह गैर मुकामी मजदूरों और उन बेघर अफराद के लिए कायम किए गए हैं जो कि रात को खुले आसमान तले सोने पर मजबूर होते हैं। डेरा मुराद जमाली के इंतजामिया के मुताबिक जब तक सर्दियां हैं उस वक्त तक बेघर अफराद, मजदूर और मेहनत कश इसमें क़याम कर सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक शेल्टर होम्स में जल्द मेडिकल की सहूलियात भी फराम की जाएंगी। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। भारत की पाकिस्तानियों से रवायती दुश्मनी, इलाज के लिए भी वीज़े देने से इनकार। पाकिस्तानियों की भारतीयों के साथ फराख दिली का एक और वाक़या मंजर-ए-आम पर। मुंबई में मोटापे के ऑपरेशन में नाकामी के बाद एक भारतीय खातून मसीहाई के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन करके 37 साला मुमाली सासन को मोटापे से निजात दिलाई। लाहौर से मजीद बताएंगे मियां नवीद। हजारों पाकिस्तानी गुर्दे और जिगर की पैवंदकारी के लिए भारतीय हुकूमत की इजाजत के मुंतजर। भारत की हट दर्मी, बीमारी से लड़ते पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार। दूसरी जानब जिंदा दिल पाकिस्तानियों की तरफ से भारतीय बशिंदों के लिए खैर सगाली का सिलसिला जारी। मोटापे का शिकार मामूली सासन 150 किलोग्राम वजन से तंग आ गई तो मुंबई में ऑपरेशन कराया। भारतीय डॉक्टर 25 किलो से ज्यादा वजन कम न कर सके जबकि खातून सर्जरी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर मुआज़ल हसन मायूस भारतीय खातून के लिए मसीहा बन गए। मेरा वेट तब था 150 केजीज पर मैं खाली 25 केजीज कम हुआ था मेरा ऑपरेशन के बाद। तो जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं हुआ था। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि डॉक्टर मास के बारे उसने हमें बताया कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ये हैं गैस्ट्रिक बाईपास वाले। सर्जन डॉक्टर मुआज़ल हसन का कहना था कि इंडिया से मरीज का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। पाकिस्तान इन्होंने ट्रेवल किया, ये मुझे मिली तो फिर मैंने इनको जब ऑपरेट किया तो उस वक्त इनका वेट था 140 kg। तो अंदर क्योंकि रीडू सर्जरी होती है, रीडू ज़रा डिफ़िकल्ट होती है तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल। सासन ने कामयाब सर्जरी पर पाकिस्तानी डॉक्टरों पर इत्मीनान का इज़हार भी किया। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर।
और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में हैं। मुल्तान तक खानेवाल और पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। उधर मरी गिलियात में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादरें ओढ़ ली हैं। लाहौर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल किया है, जानेंगे अता मोहम्मद से। जी अता, बताइएगा आप कैसा देख रहे हैं लाहौर के मौसम को? जी बिल्कुल, जो है लाहौर में रात से ही धुंध की जो शिदत है वो इसी तरह बरकरार है। अब दिन के आगाज़ पर भी जो है वो शहर के जो बेशतर हिस्से हैं वो धुंध की लपेट में है। दूसरी जाने पर रात गए मोटरवे को तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए जो है बंद रखा गया, क्योंकि जो है मोटरवे पर जो हद निगाह वो इंतहाई कम पड़ गया था। इस वक्त भी जो है मोटरवे और नेशनल हाईवे पे जो धुंध का राज बरकरार है, जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई कम है। ख़ासतौर पर जो रोड यूज़र हैं उनको सख्त मुश्किल का सामना दरपेश करना पड़ रहा है। जबकि आज दिन के औकात में शहर के बेशतर हिस्से जो है वो भी धुंध की लपेट में। हाँ, अलबत्ता आज जो सर्दी की जो शिदत है अब रोज़ाना की बुनियाद पर आज कदरे जो है वो कमी महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर और गिरदों में जो है धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। अलबत्ता बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं और बादल आते और जाते रहेंगे मगर बरसेंगे नहीं। दूसरी जानिब पर महकमा मौसमियात से ये पेशेंगोई कर दी गई है कि शहर में जो है ठंडी हवाएं चलने का भी जो है वो इम्कान है। जी अता मोहम्मद लाहौर के मौसम से मुतालिक बता रहे थे। कराची में अगले 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा कराची का मौसम कैसा रहेगा? जी, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि अगले 24 घंटे में मौसम जो है सर्द और खुश रहने का इम्कान है। इसके अलावा जो है शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके अलावा जो है हवा में नमी का तनासुब 61% है और हवा जो है 8 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी देखने में आई है कराची में, लेकिन आइंदा दिनों में जो है सर्दी जो है शदीद पड़ने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई की है कि जो है बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है शहर में। जी, खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।